Hello students. In our last class, we had discussed the textbook and syllabus prescribed for your class. Today, I'm again here to discuss the first lesson of your English literature book. So get ready for it. Keep a notebook and a pen with yourself so that you could note down the hard words and their meanings or any other important points. If you like this video, press the like button and give your feedback in the comment section. Subscribe our channel for more updates in this regard. Thank you. Well, children, have you ever imagined how will the children study if there will be no schools, no teachers? Well, in this story, The Fun They Had, written by Isaac Asimov, we will have some idea how the children will study when books and schools will not exist. This story is a science fiction written by the American writer Isaac Asimov. This story is set in the future. This story belongs to 2157 AD. In the story, there are two children, Margie and Tommy. These children are living in 2157 AD. They don't know the concept of present schools and human teachers because they have mechanical teacher in their home itself. But one day they find a book printed on paper and become very surprised. What was the book about? What was the fun which they miss? To know more, let us read the story. Margie even wrote about it that night in her diary. What was it? Those people who are in the habit of writing diaries, they write their experience of the day and the night. Whatever the special happenings they find that day, they quote them in their diaries. So Margie wrote about it. It was a book printed on paper. So she wrote about it in the diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." Actually कहानी में जो डेट है वो 17 मई 2157 है. जब भी हम डायरी एंट्री लिखते हैं तो उसके ऊपर में डेट और टाइम मेंशन करते हैं. तो वो भी बस उस दिन का डेट और सिर्फ डेट यहाँ मेंशन किया हुआ है. तो डेट मेंशन करती है और तब इसके बारे में, इस इट यानी कि बुक के बारे में लिखती है. शी रोट, "टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक." आज टॉमी को क्या मिला? एक रियल बुक मिला. क्योंकि ये फ्यूचर काफ़ी मॉडर्न ज़माने से, एज से बिलोंग करते हैं, जिससे एडवांस्ड होने की वजह से उनके पास क्या है? उनके पास मैकेनिकल टीचर है, उनके पास पढ़ने के लिए मशीनी टीचर्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है. वो बुक्स, टीचर्स, स्कूल की बिल्डिंग, कैंपस, साथ में पढ़ने वाले बच्चे, इनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके अंदर, वो जानते ही नहीं. तो इसलिए ये जो बुक, रियल बुक जो है पेपर पे जो प्रिंट होता है, शी इज रेफरिंग द सेम. Tommy found that book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather
told him that there were a time when all stories were printed on paper. जैसा कि ये जो बुक था बहुत ओल्ड था, मार्गी को ध्यान आया। मार्गी के दादाजी ने, मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, जब मार्गी के ग्रैंडपा छोटे थे, his grandfather यानी ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था, told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के ग्रैंडपा ने उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब सभी कहानियां जो हैं वो पेपर पे प्रिंट होती थी। क्योंकि अभी मार्गी और टॉमी को क्या मिलता है, स्क्रीन पे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, ई बुक्स पढ़ने मिलते हैं, इसलिए वो थोड़ी सरप्राइज्ड है, उसके लिए ये स्पेशल है। दे टर्न द पेजेस, दे मीन्स टॉमी एंड मार्गी टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स with many folds and lines. पेजेस जो थे वो मुड़े तुड़े हुए से थे, yellowish. It was awfully funny to read books that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. अब चूंकि इन्हें स्क्रीन पर बुक्स पढ़ने की आदत है, तो इन्हें जो टेक्स्ट मिलता है बुक्स में पढ़ने, वर्ड्स जो मिलते हैं वो स्क्रीन पे मूव करते हुए होते हैं। तो ये बता रही है, डायरी में मार्गी लिख रही है कि बहुत ही फनी था, बहुत ज़्यादा फनी था उन वर्ड्स को देखना जो कि पेपर पे हैं, क्योंकि वो स्टिल थे, विदाउट मूविंग, वो मूव नहीं कर रहे थे, एक ही जगह पे थे। जबकि इन्हें क्या था, ये स्क्रीन पे टेक्स्ट को मूव करता हुआ इन्हें देखने की आदत थी, जबकि यहाँ बुक्स में वर्ड जो है वो स्टिल है। एंड देन, और स्टिल होने की वजह से ये उन्हें काफ़ी फनी लग रहा है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब भी वो पीछे की तरफ बुक को पलटते देखते पिछले पेजेस को, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट। जैसे कि पेज नंबर 5 पे अगर कुछ था, अगर वापस पेज नंबर 10 पढ़ने के बाद फिर से 5 पर आओ तो 5 पर वही वर्ड्स लिखे होते। एंड इट हैड व्हेन दे read it the first time, जिस वर्ड को जहां पर उन्होंने पहली बार पढ़ा वो वर्ड वहीं के वहीं पड़े हुए थे, वो मूविंग नहीं थे, इधर उधर नहीं जा रहे थे। और यही बात जो थी मार्गी और टॉमी के लिए बहुत ही फनी थी। गी सेड टॉमी, गी, ये मार्गी को टॉमी प्यार से गी बुला रहा है। What a waste, टॉमी बोलता है what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. टॉमी बताता है कि ये जो बुक है वो वेस्ट है। जब भी तुम मार्गी को बोलता है when you are through with the book, through with का क्या मतलब होता है, having finished, having finished. So he's saying when you are through with the book you just throw it away, I guess. उसे लगता है कि मार्गी जैसे ही इस बुक को कंप्लीट कर ली वो उसे फेंक देगी। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. अब उसका कंपैरिजन टॉमी अपने टेलीविज़न स्क्रीन वाले बुक से करता है जिसमें मिलियंस बुक्स हैं, एक ही प्लेस पे पड़े हुए हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। अगर वो चाहे तो उसमें और भी किताबें उसे पढ़ने मिल सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन, सेड मार्गी,
She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. मार्गी 11 साल की थी और टॉमी जो है वो he was 13, वो 13 years का है. तो टॉमी जितने टेलीबुक्स को देखा है मार्गी ने उतना नहीं देखा, मतलब मार्गी को ज़्यादा आइडिया नहीं है बुक्स के बारे में. She said, Where did you find it? वो पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला. It means here, book. In my house, he pointed without looking. बिना देखे हुए मार्गी की तरफ, यानी पूरा का पूरा वो engrossed था बुक को पढ़ने में. सो इन माई हाउस उसने कहा, जवाब दिया, कहाँ पाया, घर में पाया. और बिना देखे कहा बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, इन द एटिक. घर में कहाँ पाया, एटिक में. एटिक क्या होता है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ. अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम. नाउ व्हाट्स इट अबाउट. स्कूल. मार्गी पूछती है किस बारे में है, यानी किताब में क्या लिखा है. तो इट्स अबाउट स्कूल. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल मीन्स फुल ऑफ हेट. स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल. आई हेट स्कूल. मार्गी को अच्छा नहीं लगता कि स्कूल के बारे में क्या लिखना. स्कूल जैसी बोरिंग चीज के बारे में क्या लिखना, स्कूल में है क्या जिसके बारे में लिखा जाए. आई हेट स्कूल. शी हेट्स स्कूल. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मार्गी को स्कूल कभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब जो है वो पहले से भी ज्यादा इसे स्कूल से नफरत हो गई है. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब देखिए, अब पहले से भी ज्यादा नफरत अब क्यों करती है, क्योंकि अभी क्या है, उसके मैकेनिकल टीचर उसके टेस्ट आफ्टर टेस्ट लिए जा रहे हैं ज्योग्राफी में और वो वर्स एंड वर्स परफॉर्म करती जा रही है, यानी बहुत बुरा और उससे भी बुरा, बार बार पहले से भी ज्यादा बुरा स्कोर करती है, खराब स्कोर करती है. तब लास्टली हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली. वो उसकी माँ जो है वो बहुत दुखी हो जाती हैं, बहुत होपलेस हो जाती हैं. एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. किसको बुलवाती हैं, काउंटी इंस्पेक्टर को. और काउंटी इंस्पेक्टर है कौन, ये एक पर्सन है जो कि मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट करने का काम करता है. जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है या कुछ मिसबिहेव करता है तो हम उसे मैकेनिक या फिर उससे रिलेटेड उसको ठीक करने वालों को घर बुलाते हैं या फिर वहाँ लेकर जाते हैं. तो ये काउंटी इंस्पेक्टर कुछ ऐसा ही पर्सन है जो उस मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट करता है, उसको ठीक करता है. कुछ अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए तो उसे सही करता है. अब काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में है जो है नेक्स्ट पैराग्राफ. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन. राउंड लिटिल मैन, गोल मटोल सा आदमी है ये, विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. चेहरा उसका रेड है और उसके पास पूरा बड़ा सा बॉक्स है जिसमें टूल्स हैं, डायल्स, विथ डायल्स एंड वायर्स. बहुत सारे तार वगैरह, डायल वगैरह जिस पे मीटर वगैरह लिखा होता है, वो सारा कुछ ले करके एक बॉक्स में वो आता है. He smiled at Margie and gave her an apple. वो आता है, मार्गी को एक एप्पल देता है. and then took the teacher apart. took the teacher apart यानी टीचर उस टीचिंग मशीन जो है उसको खोलता है, उसको अलग अलग करता है, उसके पार्ट्स को. मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्गी ने होप की, उम्मीद की, वो मन ही मन सोच रही थी कि ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि काश वो क्या करता,
उसको फिर से वापस टुगेदर अगेन करना, यानी फिर से उसको सेट करना नहीं जानता। यानी खोल दिया है, उसको सेट नहीं कर पाए तो ठीक, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे पता था कि कैसे सब कुछ सही करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, अपने जगह पे मैकेनिकल टीचर फिर से आ जाते हैं 1 घंटे बाद। लार्ज एंड ब्लैक एंड नगली, बड़ा सा वो जो मशीन है वो बहुत बड़ा है, ब्लैक काला है और अगली है। इन वर्ड से क्या पता चलता है कि मार्गी कितना हेट करती है अपने उस टीचर से। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। क्या है? लार्ज है, ब्लैक है, अगली है, बड़ा सा स्क्रीन है उसमें जिसपे सभी लेसन जो वो शोन हो रहे हैं, दिख रहे हैं। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, यानी चैप्टर उसी स्क्रीन पे दिखते थे, क्वेश्चन उसी स्क्रीन पे आते थे, पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, वो उतना बुरा नहीं था। यानी स्क्रीन, क्वेश्चन पूछना, लेसन दिखना, ये सब उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड द मोस्ट, लेकिन जो हिस्सा मार्गी को सबसे ज्यादा नापसंद था वो क्या था? वॉज द स्लॉट। एक स्लॉट बना हुआ था उसमें। स्लॉट का मतलब गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। यहां पर स्पेस से है एक्सक्यूज मी, एक स्लॉट बना हुआ है वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। इसी स्लॉट में उसे क्या करना पड़ता है? अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को इंसर्ट करना पड़ता है। जैसे हम सीडी या डीवीडी या पीडी वगैरह इंसर्ट करते हैं किसी भी गैजेट में, जहाँ पर एक उनके लिए स्पेशल स्लॉट बना हुआ होता है, वैसे ही वो होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को भी उसमें इंसर्ट करती है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। अब वो इन होमवर्क्स को लिखती कैसे है? ये जो होमवर्क है उन्हें वो नॉर्मल लेटर्स में, जैसे कि अभी आपके सामने ये टेक्स्ट दिख रहे हैं, वैसे नहीं लिखती है। उसके लिए उसको एक कोडिंग सिखाई गई है बचपन से। जैसे हम लोग बचपन में अल्फ़ाबेट सीखते हैं, ABCD क ख ग, तो वैसे नहीं, इन लोगों को एक कोड सिखाया गया हुआ है बचपन से। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। जब वो 6 साल की थी तभी से उसे सिखाया गया था। उसी कोड में इन होमवर्क को उसे लिखना पड़ता था और टेस्ट पेपर को। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। मैकेनिकल टीचर जो थे इन मार्क्स को बिना समय लिए, यानी झटपट कैलकुलेट कर देते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर स्माइल करते हैं और जब उनका काम खत्म हो जाता है मार्गी के हेड को पैट करते हैं, सहलाते हैं। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." मिसेस जोन्स जो है मार्गी की मदर है, उनको ऐसा लगता है कि मार्गी ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसे पढ़ना ना पड़े, क्योंकि वो हेट करती है तो मदर को पता होगा। इसलिए वो उन्हें क्लियर करता है कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। काउंटी इंस्पेक्टर एक्सप्लेन करता है कि क्यों दिक्कत आ गई थी उस टीचिंग मशीन में, कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो गियर्ड हो गया था, यानी कि एडजस्ट हुआ था। कैसे? अ लिटिल टू क्विक, जितना उसे जिस स्पीड में होना चाहिए था उससे ज़्यादा तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप। बताता है कि उसने अब उसको स्लो कर दिया है टू एन एवरेज 10 year लेवल। 10 year ओल्ड बच्चे के लेवल से उसे एडजस्ट कर दिया है। जैसे आप लोग गेम्स खेलते हैं तो फर्स्ट लेवल थोड़ा आसान होता है, सेकंड उससे टफ, थर्ड उससे टफ, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे से वो टफ होता चला जाता है। ठीक वैसे ही 10 year लेवल तक उसे सेट कर दिया इन्होंने, यानी कि जो मार्गी के लिए आसान हो, फिट हो। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। जो ओवरऑल पैटर्न उसने उसमें फाइंड किया काउंटी इंस्पेक्टर ने, वो सेटिस्फैक्टरी था, ऐसा उसने मदर को बताया। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, ने उसके सिर को वापस से थपथपाया, सहलाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी
होपलेस हो गई। वो चाहती नहीं थी कि टीचर ठीक हो। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो चाहती थी कि टीचर को पूरा का पूरा उठा के लेके चले जाएं। यानी कि कभी कभी कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाती है तो पूरे गैजेट को घर से वापस कंपनी या उसके किसी खास जगह पे भेजनी पड़ती है बनवाने। तो वो चाहती है कि टीचर को सीधा का सीधा लेके चले जाएं। दे हैड वॉन्स टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। उसे याद आता है कि एक बार टॉमी के टीचर को ले जाया गया था लगभग 1 महीने के लिए, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, पूरा डिलीट हो गया था कह लो। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब ये सारी जो बातें हैं वो उसे याद आ रही हैं कि कभी टीचर किस तरह से, क्यों यहाँ पे आइजैक असीमोव बताना चाहते हैं कि बच्ची को टीचर से कितना नफरत है और क्यों है। और अब वापस से ये सारी चीज़ें फ्लैशबैक में चल रही थी जहाँ पे वो पिछले एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब वापस से कहानी प्रेजेंट में आती है, कहाँ, जहाँ टॉमी बुक को पढ़ रहा है और वो पूछती है कि बुक में क्या लिखा हुआ है। फिर वो स्कॉर्नफुल हो जाती है जब जानती है कि बुक में स्कूल के बारे में लिखा गया है। अब वो फिर से पूछती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखे, क्यों लिखना चाहिए। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी उसे ऐसे देखता है जैसे वो बहुत जानता हो, सुपीरियर आइज से देखता है। Because it is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily. पहले तो वो उसको ये जताता है कि जैसे वो बहुत जानता है और उसे कुछ नहीं पता, इसलिए उसको स्टूपिड बोलता है और बोलता है कि ये हमारे तरह का स्कूल नहीं था, यानी मैकेनिकल टीचर वाला स्कूल नहीं था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स ऑफ अगो। जो लोगों के पास जो स्कूल्स सैकड़ों साल पहले थे, उन स्कूल्स की बात हो रही है। ही एडेड लॉफ्टीली, इस बात को उसने लॉफ्टीली सुपीरियर वे में, यानी ये जताते हुए कि जैसे उसे बहुत नॉलेज हो, इस तरीके से बोलता है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। जो सेंचुरीज अगो वर्ड है उसको बहुत केयरफुली दिखाता है, यानी वो ध्यान दिलाता है मार्गी का कि सैकड़ों साल पहले ऐसा था। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी को बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसको रूडली एक्सप्लेन कर रहा है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। बोलती है ठीक है, मुझे नहीं पता तब किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। वो उसके कंधे के ऊपर से थोड़ी देर बुक को देखती है। देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। फिर वो बोलती है कि उनके पास टीचर तो था ही। मीन्स शी वांटेड टू make him understand that she had a bit idea about those schools also. She is not completely ignorant as he was underestimating her. Excuse me. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. अब टॉमी उसे समझाता है कि बिल्कुल उनके पास टीचर तो था ही, लेकिन वो हमारी तरह का रेगुलर टीचर नहीं था। वो क्या था? एक मैन था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। एक आदमी कैसे टीचिंग कर सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। बताता है कि टीचर कैसे टीच करते थे, तो बच्चों को बताते थे, टोल्ड द थिंग्स टू गर्ल्स एंड बॉयज एंड गेव देम होमवर्क and ask them questions. A man isn't smart enough. Margie says that man isn't smart enough. Man इतना smart नहीं हो सकता जितना कि teaching machine.
श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब टॉमी बताता है कि मेरे पिताजी को उतना पता है जितना मेरे टीचर को पता है। यानी टीचर तो फाइव क्लास के हिसाब से या 1 क्लास के हिसाब से या फिर और अपर क्लासेस के हिसाब से सेट होते थे, तो उतना अगर उसके फादर ने पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा ही। उसे लगता है कि उसके पिताजी को जो भी पता है या जितना पता है वो उसके मैकेनिकल टीचर के जितना पता है। तो एक मशीन को जो पता हो सकता है, एक आदमी को भी पता हो सकता है, आदमी भी पढ़ा सकता है। उसके कहने का ये मतलब है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बेचा इज एन इनफॉर्मल वे टू से बेट, शर्त लगाना। कहता है कि उन्हें उतना ही पता है लगभग जितना मैकेनिकल टीचर को यानी फादर को उतना पता है। आई बेट, मैं ये शर्त के साथ कह सकता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब इस बात को काटने की, डिस्प्यूट करने की, डिसएग्री होने के लिए कोई पॉइंट मार्गी के पास नहीं था। सी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन। पहले तो उसने कहा कि मैन को जानकारी नहीं हो सकती उतनी, और अब क्या बोलती है कि आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। फिर बोलती है कि मैं किसी भी अजनबी अननोन पर्सन को, स्ट्रेंज मीन्स अननोन, मैं किसी भी अननोन पर्सन को अपने घर में मुझे पढ़ाने आने नहीं दे सकती, मैं नहीं चाहती। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी जोर जोर से हंसता है। स्क्रीम का मतलब चीखना होता है, यहाँ लाफ्टर से रिलेटेड है। सो स्क्रीम मीन्स हियर लाफिंग लाउडली, जोर जोर से हंसता है। You don't know much, Margie. The teachers did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. अब वो एक्सप्लेन करता है कि ये वो टीचर नहीं थे जो घर में हों, उनका अपना स्पेशल बिल्डिंग था जैसा कि हमारे पास अभी होता है। And all the kids went there. टीचर की स्पेशल बिल्डिंग होती थी और बच्चों को वहाँ जाना पड़ता था। Sorry. And all the kids learned the same thing. फिर वो पूछती है कि सभी बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज। एक एज ग्रुप के बच्चे एक चीज पढ़ते थे, सेम चीज पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। अब मार्गी बताती है कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि टीचर को बच्चे के माइंड के हिसाब से फिट करना पड़ता है, एडजस्टेड टू फिट, क्योंकि हर बच्चे को डिफरेंटली पढ़ाने की जरूरत होती है। इसलिए जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। जस्ट द सेम तब भी बिल्कुल ऐसा ही था, बट तरीका वो नहीं था। वो बताना चाहता है, टॉमी बताना चाहता है कि जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। बात वही है, लेकिन इस तरीके से तब नहीं होता था जिस तरीके से मार्गी और टॉमी के साथ टीचर उन्हें जैसे पढ़ाते हैं वैसे तब नहीं पढ़ाते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब इतना मार्गी जो है वो बार बार बोले जा रही है कि मैन नहीं जानता उतना, या मैन को घर में नहीं आने दिया जा सकता, या मैन को तो मैन हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग एडजस्ट नहीं हो सकता। अब ये सुन के ऐसा लगता है कि टॉमी उसको बोलता है कि तुम्हें अगर पसंद नहीं, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें बुक नहीं पढ़ना है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी जल्दी से बोलती है कहीं वो बुक हटा ना ले, चुबा ना ले या उसे ना दे, इसलिए वो बोलती है नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। एक्चुअली उस बुक में जो स्कूल्स के बारे में, ओल्ड स्कूल्स के बारे में बताया गया था, उन फनी स्कूल्स के बारे में वो भी पढ़ना चाहती थी। अभी ये सारी बातें चली रही थी, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड। अभी बुक जो थे
अब बुक जो थी उसे उन्होंने आधा भी नहीं पढ़ा था कि व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, मार्गी की माँ ने उसे याद दिलाया कि स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा नाउ सेड मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स ने कहा नहीं अब भी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, उन्होंने टॉमी को भी ध्यान दिलाया कि तुम्हारे भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी ने टॉमी से जानना चाहा कि क्या वो स्कूल के बाद उस बुक को पढ़ सकती है उसके साथ। मे बी ही सेड नॉनशैलेंटली, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाता, वो ऐसा जताता है कि मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें पढ़ाने में। ही वॉकड अवे विशलिंग, वो विशल बजाता हुआ वहाँ से चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, वो अपने आर्म के नीचे उस बुक को बहुत ही टक करके रखता है, यानी कंफर्टेबली उसको संभाल के। डस्टी कहा गया है क्योंकि डस्टी यहाँ डस्ट से है। उस ओल्ड बुक को अच्छे से संभाल के लेके चले जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है जो कि उसके बेडरूम से राइट नेक्स्ट में होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। इट इज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मार्गी अपने स्कूल जाती है, उसके टीचर ऑन हो चुके हैं और वो रोज दिन ऑटोमेटिक अपने समय पे ऑन हो जाते हैं, मशीन जो है वो ऑन हो जाता है, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, संडे और सैटरडे को छोड़ के। बिकॉज हर मदर सेड दैट लिटिल गर्ल्स लर्न इट बेटर इफ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स। अब ये सेम समय पे क्यों ऑन होना, भाई घर में है जब मर्जी तब पढ़ लो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि जब रेगुलर आवर्स पे पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से लर्निंग होती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन कैसा था, लाइटेड था, अभी जैसा आपके सामने है वैसा था। एंड इट सेड today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. उससे होमवर्क, लास्ट डे का जो होमवर्क है उसको स्लॉट जिससे वो सबसे ज़्यादा हेट करती है उसमें डालने कहा जाता है। मार्गी डिड सो विद अ साई, एक अफसोस के साथ उसमें होमवर्क को एंटर करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो सोचे जा रही थी उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में जब उसके ग्रैंडपा बच्चे थे, वॉज अ लिटिल बॉय। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. पड़ोस के सारे बच्चे आते थे, हंसते खेलते शोर मचाते हुए स्कूल यार्ड में। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते इन द स्कूल रूम। गोइंग होम टुगेदर, वापस एक साथ घर जाते। एट द एंड ऑफ द डे they learn it the same things so they could help one another with the homework and talk about it. जब वो सेम चीज़ें पढ़ेंगे तो होमवर्क बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक दूसरे से डिस्कस कर लेंगे, एक दूसरे को हेल्प कर देंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और वो क्या सोच रही थी कि टीचर्स कैसे थे, पीपल, लोग थे, यानी ह्यूमन टीचर थे, हुआ करते थे। यानी वो बैठी है मैकेनिकल टीचर के सामने जबकि वो सोच रही है सब ओल्ड जो फंक्शनिंग ऑफ स्कूल्स थे उनके बारे में। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, इधर मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहे हैं। when we add fractions 1 by 2 and this. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. जबकि इधर फ्रैक्शंस को ऐड करना सिखाया जा रहा है और मार्गी सोचे जा रही है, वो खोई हुई है, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। वो ये सोच रही है कि पुराने स्कूल्स जो होते थे, बच्चों को उन स्कूल से कितना प्यार हुआ करता था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उन फन के बारे में सोच रही थी, उस फन के बारे में जो उनको यानी उस समय के लोगों को मिलती थी, उस फन को वो मिस कर रही है, उनके बारे में सोचे जा रही है। So children, this is the end of this chapter, and we learn from this chapter that there is
no comparison between the human teacher and the mechanical teacher. Mechanical teacher can never be the substitute for the human teacher. In our next class, we'll discuss about the given practice based on the question, this one. Thank you and have a nice day.